me share my screen as well. Yeah. So can you guys able to see my screen? Yes. Great. Okay. Amazing. Fine. Okay. So what we have done in our last lecture, can we just revise it once over here? What all topic we have covered in our last lecture? Yes, guys. Can you able to go through them once over here? Yes. What all we have seen? Mm-hmm. Should I repeat it for you guys or if else? Yeah, if else. We have seen the if else ladder, right? Then loops we have seen. Then we have seen different types of functions. Yes. Okay. And loops maybe we have seen which all loops we have seen for loop, while loop, and do while loop. Right. Right. And later we have also seen one jump statement. Right, which was the break and continue. Yes. Hope so. You remember that. Yes, guys. Yes. Can you able to remind remember that? Yeah. हमने ये भी किया था which was this break and continue statement. Hmm. uh, yes, no one been responding. Can you guys able to hear me properly? कुछ वॉइस में लैग हो रहा है क्या? Yes. हाँ अनुराग, yeah, say you have raised your hand. हाँ, कुछ मेरा वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है क्या? No, all right, okay, fine. Fine. No, okay, fine. All right. Okay. So what all we'll be doing in a today's class is first of all ना हमारे function में we have one return statement. Okay. Why do we require that return statement? All that stuff. Okay, we'll be seeing it today. Okay. We have one return statement that was left in our function. Okay. Then later we'll be seeing the important part, that is the array. Okay, then we'll be seeing array operations. How can we update? We can read the values from an array. Okay, what are arrays and all stuff. Yes, then we'll be seeing objects. Okay, objects क्या होते हैं? Fine. Then we'll be seeing the array of objects. Array का objects कैसा मतलब objects के array कैसा बनाते हैं? Right. Then later हम कैसा एक लक्की ड्रॉ विनर गेम होता है, उसका लॉजिक कैसा होता है, राइट? वो हम आज करने वाले. Fine. So what all we'll be covering today is, let us do it over here. Okay, so first one is we'll be seeing the um, return statement. Yes, then we'll be seeing array and it operations. Operation मतलब हम उसको update कैसा कर सकते हैं, उसके elements के access कैसा कर सकते हैं. Fine, update करेंगे, delete करेंगे, right? Okay, then later what we'll be seeing the objects, or we can say the array, this methods, right? In this method we have the three types of methods: array, map method, and they have filter and reduce. Fine. And after this we'll be seeing the objects. Okay, similarly objects may object and its we can say operations. How can we perform different types of operation on this object? And later we'll be seeing what are array of objects. ओके, सो ऑब्जेक्ट्स के हम एरे बनाएंगे, राइट? जो आपका जेएसएन डेटा होता है, व्हाट डज दिस जेएसएन डेटा मीन? डोंट वरी, विल बी सीइंग दैट एज वेल. ओके, एंड लेटर विल बी सीइंग द लॉजिक. हाउ डू दिस लकी ड्रॉ, हाउ डू लकी ड्रॉ winner game is played. Fine. Okay, so we will be covering all this in our today's class. Fine. Okay, so should we move ahead now? Yes, guys. Okay, network issue at my place. No worries, no worries. Fine. All right. Okay, fine. So let us, what we can do? We can open this folder, right? Let us create one new folder over here as in JS day 3. Fine. Let us open this JS day 3 with an VS Code. Fine. So first of all, we'll be seeing the return statement. Okay, what does this return statement is? Okay, so let us create two files over here. First is index.html, right? And let us have one more file of app.js, or we can say of JS file, index.js, right? Let us have the boilerplate over here.
Yes, and we can say it's JS day 3, right? And let what we can do over here, we can have this head one, welcome to third day of JavaScript, and at the end we can just link this, what it is, uh, JavaScript file. All right, now what we'll be seeing in our first one, return statement in function, return statement in function. Okay, so first of all हम क्या करेंगे, एक function बनाते हैं, right? That is the addition of two numbers. Fine. So what's the syntax of this? How can we make the function? Let us make the normal function. Okay, so syntax of creating the normal function is, let me zoom my screen and close this tab over here. तो आपका फंक्शन बनाने के लिए आपका सिंटेक्स क्या होता है, पहले आपको फंक्शन देना होता है, राइट? उसके बाद आपको उसका नाम लिखना होता है, राइट? फंक्शन का नाम, एंड दिस इज हाउ यू बिल्ड योर फंक्शन, राइट? नाउ we want to what we want to do, we want to add two numbers, right? So what we can do, we can have two numbers over here, a comma b, we can have, or we can have, let us take the some this value such that we can able to get it. Okay, now what I want, let me call this function from here. Okay, how we do it, we just do it over here in this way, right? I will call 2 comma 3. So 2 कहाँ पर store हो जाएगा, num1 में, right? And 3 where it will be stored in num2, right? This we call it as function call, and this is what we call it as function definition, right? जहाँ पर हम कितने भी, अभी यहाँ इसके बाद आप इधर से ऐड करके 3 प्लस अभी कुछ भी आप नंबर पास करते हो, राइट? सो व्हाट दिस फंक्शन वी हैव बिल्ड दिस फंक्शन. सो हमें क्या करेगा, हमें एक 2 नंबर का एडिशन करके देगा, right? Okay, and now what we can do, what we used to do over here, we just used to console.log, that is we have to just print the addition of two numbers, right? That we have seen in our last lecture. Okay, so let us open this with a live server. Yes, and let us see the console part, which is over here, inspected console. So we have got the 5, that is a 2 plus 3 5. Okay, now what I want, see, this addition of two numbers I want to be in one, we can say क्या, एक आपके वेरिएबल में, और we can say in one this, right? वेरिएबल में आपके एक स्टोर होना चाहिए, right? And later what I want, जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है, right? What I mean to say, आपका लिसन ना, मेरे को क्या करना है, ये इसका एडिशन करके मुझे ये वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर करना है, right? And later whatever the number is while passing this both the arguments, ओके मुझे एक वेरिएबल में उसको स्टोर करना है, ओके एंड बाद में मुझे क्या करना है, जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई बाय 10 करके उसको आउटपुट करना है, समझ रहे हो? सो मैं क्या करूंगा, सी, एंड दिस इज आपको रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करके करना है, ओके? ऐसा नहीं कि आप, हाँ जस्ट वंस, हाँ someone have said something, okay fine, no worries. ओके, सो हमें क्या करना है, हमारा बेसिक ये क्या है, पहला आपको क्या करना है, दो नंबर का एडिशन लेना है, यस इट्स बीन डन ओवर हियर. अभी क्या करना है, आपको रिटर्न स्टेटमेंट के यूज करके आपको जो भी नंबर का सम आएगा, ओके मतलब एडिशन ऑफ टू नंबर्स का जो भी आपका रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, उसको मुझे रिटर्न करना है और उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना है, ओके? सो मैं क्या करूंगा, मुझे उसको रिटर्न करके एक वेरिएबल में स्टोर करना है, ओके? बिकॉज जब आप रिटर्न करोगे तो वो जो भी आपका वैल्यू रिटर्न हो रहा है, ओके, उसको आपको एक वेरिएबल में स्टोर करना होता है, राइट? सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी राइटिंग योर रिटर्न, ओके? एंड रिटर्न व्हाट इट विल रिटर्न, रिटर्न मतलब वो आपको एक वापस कॉल बैक करेगा और यहाँ पर आके आपके जो भी वेरिएबल में दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल लेट रिजल्ट इक्वल्स टू एड 2 प्लस 2 कॉमा 3. तो एड 2 कॉमा 3 क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एड इज वन फंक्शन विच विल गो ओवर हियर, राइट? num1 में क्या स्टोर होगा 2, एंड 3 में num2 में क्या स्टोर होगा 3, राइट? नाउ व्हाट आई एम सेइंग, आई वांट टू रिटर्न एडिशन ऑफ दिस बोथ नंबर num1 एंड num2, एंड रिटर्न का मतलब क्या होगा, वो आपका जो भी वैल्यू रहेगा वो आपके जो जहां से आपका फंक्शन कॉल आया था, समझ रहे हो? जहां से आपका फंक्शन कॉल आएगा वहां पर वो आपका जो भी वैल्यू है उसको भेज देगा, फाइन? उसके बाद में कुछ भी लिखूंगा ना वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज जैसा रिटर्न स्टेटमेंट आपका ये आ जाता है, एनकाउंटर होता है, उसके बाद नीचे का जो भी कितने भी लाइंस हो गए, ओके वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर आपका फंक्शन खत्म हो जाता है, ओके? बिकॉज फंक्शन को लगता है एज सुन एज आई एनकाउंटर्ड रिटर्न स्टेटमेंट, मेरा वहां से वापस नीचे जितने भी मतलब कुछ है ही नहीं,
ओके यहाँ पर नीचे he won't be looking anything below that line. ओके जैसे ही उसको रिटर्न एनकाउंटर होगा, इसके बाद आपने जो भी लिखा होगा उसको वो रिटर्न करके ओके इट विल एंड इट एग्जीक्यूशन. ओके सो हम क्या कर रहे हैं अभी, हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट रिटर्निंग द एडिशन ऑफ टू नंबर्स एंड ये कैसे एक वैल्यू रिटर्न करेगा. तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वैल्यू रिटर्न करेगा राइट ऑफ दिस एडिशन ऑफ टू नंबर्स. तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ रिजल्ट में. ओके अभी इसके बाद अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ रिजल्ट को, सो मुझे आंसर क्या आना चाहिए, माई आंसर विल बी 5 राइट. So let us do this and see हमारा आंसर 5 है क्या नहीं. See we have got this 5. Let us change the number and see which is 10 and 3 which would be 13 right. Let's go and see. See we have got this 13. Okay so return statement क्या होता है, return statement see इसके बाद अगर मैं जैसा आपको बोलूँ, इसके बाद अगर मैं कुछ भी लिखूँ क्या, let us see क्या is this function is working after return statement. So let us say function is working आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट. तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने बोला जैसा द फंक्शन को एक रिटर्न स्टेटमेंट मिलेगा, उसके नीचे जितने भी लाइंस हो गए, देखो इसके वजह से वो हाईलाइट भी नहीं हो रहा है राइट. कंसोल कैसा दिखता है, विच इज हाईलाइटेड हो गया, बट यहाँ पर हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज आप जो भी नीचे करोगे वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा. बिकॉज जैसे फंक्शन को रिटर्न आपका ये आ जाता है, स्टेटमेंट आता है, ओके जैसा वो एनकाउंटर कर देगा आपका रिटर्न वर्ड स्टेटमेंट, ओके सो क्या कर देगा, जो भी आपने रिटर्न करने बोला रहेगा उसको रिटर्न कर देगा. ओके एंड हम कैसे इसको रिटर्न कर रहे हैं राइट, हम इसको वापस पास कर रहे हैं, जो भी वैल्यू है हम फंक्शन से ले रहे हैं. सो हम क्या कर रहे हैं, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं फाइन. एंड उसके बाद आपको भी जो भी आपके साथ मतलब आपको कुछ भी परफॉर्म करना ऑपरेशन उसके साथ आप कर सकते हो. ओके एंड फॉर दैट कंसर्न हम ये रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं फाइन. इसके बाद हम रिटर्न स्टेटमेंट को और भी देखेंगे व्हेन विल बी सीइंग एरे. फॉर नाउ जस्ट एक आपको सिंपल एक ये दे रहा हूँ कि जैसे आपका रिटर्न स्टेटमेंट आएगा उसके बाद देखो अभी मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग कर दिया था फंक्शन इज वर्किंग आफ्टर रिटर्न, जस्ट टू चेक इज द फंक्शन इज वर्किंग आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट. सो हमें आउटपुट सिर्फ क्या आएगा, 13 आएगा. ओके लेट अस डू 10 प्लस 10 30 विच शुड बी 40. ओके हमारा ये प्रिंट ही नहीं होगा. सी लेट्स गो एंड सी वी हैव जस्ट गॉट द 40 ओवर हियर एंड हमें क्या प्रिंट नहीं हुआ है, विच इज ओवर हियर दिस इज दिस वन, दिस लाइन हैज नॉट बीन प्रिंटेड बिकॉज मैंने जैसा आपको बोला था. इसके बाद हम कुछ भी करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट के बाद फंक्शन को समझेगा नहीं, और फंक्शन को जैसा रिटर्न स्टेटमेंट मतलब एनकाउंटर्ड होता है इट विल स्टॉप इट एग्जीक्यूशन. समझ रहे हो, एंड जैसा हमने रिटर्न किया तो रिटर्न करेगा तो एक वैल्यू रिटर्न करता है, उसके लिए हम उसको कहाँ पर स्टोर करते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं राइट. एंड उसके बाद हमें वेरिएबल का यूज करके आप उसके बाद आपको जो भी परफॉर्म करना ऑपरेशन वो आप कर सकते हो. ओके इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या होता है, अभी आप समझो आप डेटाबेस से कुछ वैल्यू फेच कर रहे हो ओके एंड वो वैल्यू फेच करने के बाद जैसे आपको अभी समझो आप एक कौन से भी स्टूडेंट को आप ढूंढ रहे थे. ओके आप क्या कर रहे थे, कौन से भी स्टूडेंट को फाइंड कर रहे थे. ओके सो मैं क्या करूंगा, पहले डेटाबेस को कनेक्ट कर दूंगा, उसके बाद एक लूप लगा दूंगा यहाँ पर. ओके वो लूप में क्या करेंगे, हम हर एक स्टूडेंट को नाम मतलब फॉर एग्जांपल वी विल पॉइंट टू ईच स्टूडेंट नेम ओवर देयर फाइन. एंड एज सून एज फॉर एग्जांपल आई एम सर्चिंग फॉर द स्टूडेंट नेम आशीष right, I'm searching for the student name Ashish. Okay so as soon as I get the name Ashish, what I will do, I will return that Ashish. Okay so मेरा क्या हो जाएगा, वहां पर हमारा एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा लूप का. समझ रहे हो, सो दैट क्या हो जाएगा, हमें आगे एग्जीक्यूशन नहीं हो जाएगा राइट. एंड मुझे जो चाहिए था वो वैल्यू मिल गया तो मैं वहां से रिटर्न हो जाऊंगा. ओके वो रिटर्न आके हम क्या कर देंगे, रिटर्न में अगर हमें ट्रू मिल जाएगा या तो फॉल्स मिलेगा. ओके बिकॉज हम सिर्फ नॉर्मल रिटर्न करेंगे ना, अगर मैं सिर्फ रिटर्न ट्रू करूंगा तो मुझे ट्रू मिलेगा. ओके एंड अगर अगर पूरा आपका एग्जीक्यूशन होने के बाद आपको कुछ नाम ही नहीं मिला तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा. समझ रहे हो, तो फॉल्स का मतलब क्या हो गया, मुझे वैल्यू नहीं मिला है, और ट्रू का मतलब क्या हो गया, मुझे वैल्यू मिल गया. तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे रिटर्न ट्रू मिल रहा है, सो व्हाट आई विल डू, I will say क्या the user is already exist in a system right, or else what we can say if the we return false तो हम क्या बोलेंगे, user does not register, user have not yet been registered. yes तो वहां पर हम ऐसा रिटर्न फंक्शन के यूज कर सकते हैं राइट. सो सी वी हैव गॉट द आउटपुट ओवर और हमारा उसके बाद वाला जो भी आपका लाइन में लिखे रहेगा वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होता राइट. सो आई होप सो रिटर्न स्टेटमेंट सबको समझा है. Yes, guys. Can you able to get this written statement? Yes. Okay, fine. Great. Okay. Now let us see the first this data structure. Okay, don't get scared. Okay, data structure क्या होता है? Data structure is nothing but how your data will be stored, right? Inside your memory is nothing but your data structure. Okay. So let's see the first one. It is array.
ओके हम क्या देख रहे हैं, एरे. व्हाट डज दिस एरे इज नाउ? लेट अस सी एन एग्जांपल और वी कैन से लाइक सिनेरियो. आप समझो. ओके व्हाई डू वी रिक्वायर दिस एरे? सो अभी आप समझो कि आपके क्लास में, एक कॉलेज में वी हैव वन क्लास. ओके वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस. नाउ लेट अस अज्यूम, okay, we have one class, okay, जहाँ पर there are 15 students. Okay, there are 50 students. I am saying 50, 50, 50 students. Fine. Now what I want to note down the name of all the 50 students present in that class. Okay, so what I will be doing, I won't be doing क्या, ऐसा तो मैं क्या ऐसा नहीं कर सकता ना, मैं 50 वेरिएबल्स बनाऊंगा, राइट, एंड वो 50 वेरिएबल्स में अलग अलग स्टूडेंट्स का नाम स्टोर करूंगा, राइट. ऐसा तो मैं नहीं कर सकता कि क्लास, फॉर एग्जांपल आई एम स्टोरिंग द दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11th. ओके सो मैं ऐसा तो नहीं करूंगा 11 स्टूडेंट 1, 11 स्टूडेंट 2, 11 स्टूडेंट 3. ऐसा मैं वेरिएबल करके तो 50 स्टूडेंट्स का नाम तो स्टोर नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स इन अ रियल लाइफ सिनेरियो इट वुड बी लाइक 1000 लोग का आपको करना होगा या तो 500 लोग का करना होगा, राइट. द डेटा कैन बी यूज, राइट. सो फॉर दैट कंसर्न हम क्या करेंगे, हम एरे का यूज कर रहे हैं. तो एरे क्या होता है बेसिकली? एरे मतलब अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज इनसाइड वन सिंगल वेरिएबल स्टोर करना है, एरे की यूज करोगे आप. अगर आपको एक मतलब एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज आपको स्टोर करना है, इट कैन बी लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स. ओके नॉट ओनली स्टूडेंट्स, कुछ भी आप स्टोर कर सकते हो उसके अंदर. आप नंबर स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो, कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, बुलियन स्टोर कर सकते हो, एनीथिंग. ओके सो आपको मल्टीपल वैल्यूज अगर स्टोर करना है इनसाइड वन सिंगल वैल्यू, इनसाइड वन सिंगल वेरिएबल, फाइन. सो ड्यूरिंग दैट टाइम आप क्या यूज करोगे, एरे. ओके सो लेट अस सी एरे का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंड लेट अस सी हाउ कैन वी get access to that element from an array. Okay so array basically कैसा दिखता है, I will make you understand over here. तो array is nothing but ऐसा आपका horizontally एक बॉक्स जैसा रहता है. ओके सो नाउ लेट अस से कि हम कितने ए कर रहे हैं, हम लेट अस से वी आर मेकिंग एन एरे ऑफ, लेट अस से कितने हमें ये आता है, let us consume it to 7 or 8, or we can say 6 7. So we have got 3 boxes, 4 boxes over here. What we are storing over here, let us store the numbers now. Fine, we'll be storing the numbers now for now. Okay so हम कितने यहाँ पर भी कितने वैल्यूज का हमने एरे बनाया, 1 2 3 4 5 6 7, राइट. तो हमने कितने वैल्यूज का एक एरे बनाया, 7 का. Okay so now what I want to store number from 1 to 10 for now. Okay now we can store the value as well. Okay don't worry, let us store the smaller value, Raj. Now what else we can store, let us store the Rahul, right. Now let us store the smaller we can say to Ravi, right. And let us store the number from SID Sid, right. And what else we can store, we can store the Palak over here, right. And what else we can store now, let us store the Ram, and let us say the last one which can be Aniket over here. ओके सो हमने क्या बनाया, हमने क्या बनाया, एक एरे बनाया. ओके एंड लेट अस से एरे का नाम है हमने दिया है फॉर नाउ एज एन व्हाट एल्स, व्हाट कैन वी कैन गिव इट नाउ, इट्स एन लेट अस से एक क्लास एरे. ओके क्लास में नहीं करता हूँ, यू वुड बी गेट कंफ्यूज्ड. ओके सो आई विल से द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का एक एरे बनाया, राइट. सो ये क्या है, एक एरे है जहां पर मैंने मल्टीपल स्टूडेंट्स को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर दिया है, राइट. तो स्टूडेंट एक वेरिएबल है. ओके स्टूडेंट्स करके एक वेरिएबल है जहां पर मैंने कितने वैल्यू स्टोर किए, 1 2 3 4 5 6 7, राइट. ओके सो हमने क्या बनाया, एक एरे बनाया. और एरे कैसा दिखता है, ऐसा बॉक्स में दिखता है. ओके एक हॉरिजॉन्टली बॉक्स होता है जहां पर एक बहुत सारे क्या होते हैं आपके हॉरिजॉन्टल लाइन, जो आपके एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से सेपरेट करते हो. सी दिस इज अ वन एलिमेंट, दिस इज अ सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, सिक्स्थ एलिमेंट, सेवेंथ एलिमेंट. अभी आपको क्या करना है, अभी मुझे देखो स्टूडेंट्स में तो मुझे पता चल गया कि इतने सारे क्या स्टोर है, वैल्यू स्टोर है. बट मुझे अभी समझो, मुझे यहाँ से वैल्यू को क्या करना है, फेच करना है, मुझे उसको क्या करना है, एक्सेस करना है. ओके मुझे उसके काम करना है वो वैल्यू को एक्सेस करके. ओके सो ड्यूरिंग दैट टाइम आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, तो टू गेट एक्सेस फ्रॉम दिस एलिमेंट, ओके आपको इसके अंदर के एलिमेंट को फेच करना होगा. तो हमें एक इंडेक्स दिया होता है, इंडेक्स इज नथिंग बट नंबरिंग दिया होता है. ओके सो इट्स लाइक एक एड्रेस दिया होगा. ओके सो इसका एड्रेस मतलब आपका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट गोज ऑन 1 by 1, मतलब एक एक करके वो इंक्रीमेंट होता है. तो 0 से स्टार्ट होता है,
then we have 2, then we have 3, okay, then we have 4, 5, okay, and 6, okay. इट वोंट स्टार्ट फ्रॉम वन. हाँ, ये इंडेक्सिंग आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है. तो अभी मुझे समझो, अगर मुझे सीध करके एक स्टूडेंट का एक्सेस चाहिए, फैच करना है, तो वो कहाँ पर प्रेजेंट है? आपके इंडेक्स 3 पर. तो मैं क्या लिखूंगा? स्टूडेंट, और उसके ब्रैकेट में लिखूंगा 3. तो मुझे कौन सा स्टूडेंट मिलेगा? सीध करके नाम का एक स्टूडेंट मिलेगा. ओके, सिमिलरली अभी आपको अनिकेत करके चाहिए, तो आप क्या करोगे? स्टूडेंट्स, और वो कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है? 6. तो आप लिखोगे बॉक्स में 6. तो आपको कौन सा वैल्यू मिलेगा? एलिमेंट अनिकेत. ओके, सो आप इस तरह से आपका क्या करते हो? आपके एरे के अंदर के वैल्यू को फेच कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो. ओके, डोंट वरी, विल बी सेइंग इट. ओके, बट आई हैव जस्ट गिव यू ब्रीफ आइडिया कि आप क्या कर सकते हो इन सिंगल वेरिएबल. देखो, आप ये सिंगल वेरिएबल डिफाइन करोगे, लेट कुछ भी करके नाम दे सकते हो. ओके, उसके बाद आपको क्या करना है? एक स्क्वायर ब्रैकेट में कितने भी एलिमेंट्स आपको नोट लिस्ट डाउन करना है, आप लिस्ट डाउन कर सकते हो, राइट. एंड आपको उसका एक्सेस कैसा कर सकते हो? उसका हमारे पास होता है इंडेक्सेस. ओके, इंडेक्स होता है जहां से जीरो से स्टार्ट होके वो गो ऑन, मतलब जाता ही रहता है जहां तक आपका एलिमेंट खत्म ना होता है. ओके, इट गोज ऑन एंड ऑन. फाइन. सो एज यू कैन सी, 0, फिर 1, 2, 3, 4 एंड 5. एंड ये इंडेक्सिंग क्यों प्रेजेंट होता है? अगर आपको एरे के अंदर के एलिमेंट को फेच करना होगा. ओके, सो ड्यूरिंग दैट टाइम आप क्या करते हो? इंडेक्स का यूज करके आप अपना एरे के अंदर के एलिमेंट को फेच कर सकते हो. ऑल राइट. ओके, सो लेट अस सी हाउ कैन वी डू इट नाउ. ओके, सो ये तो हमें मिल ही गया. सो लेट अस कमेंट दिस, राइट, एंड वी विल बी सीइंग एन एरे ओवर हियर. सो एरे को आप डिफाइन कैसा करते हो? मैंने कैसा बोला, आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना है. तो आई विल से लेट, अभी आप स्टूडेंट नाम का ही एक एरे बनाते हैं. स्टूडेंट्स इक्वल्स टू, अभी आपको क्या करना है? एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स देना है ना. तो आप नॉर्मली नहीं लिखोगे ऐसा, मतलब सी ऐसा ये डायरेक्टली आप नहीं लिखते. ओके, बिकॉज ये नॉर्मली एक नॉर्मल आप वेरिएबल बना रहे हो, राइट. बट हम क्या बना रहे हैं? एक एरे बना रहे हो. तो एरे को आपको बनाना होता है ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में. ओके, तो इससे हमें समझ रहे हैं हम क्या बना रहे हैं? एक एरे बना रहे हैं. Okay, so now let us store the name of a students. It can be Siddesh, it can be Raj, right? It can be Aniket. We can have, okay. What else we can have? We can have the Rahul over here. Okay, let us take the last one. We can have the last one over here as an Smoothie. Okay, we have got the students of 5 name 1, 2, 3, 4 and 5. ओके, अभी आपको उसको प्रिंट करना होगा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो console.log उसका नाम. ओके, सो अभी यहाँ पर अगर मैं स्टूडेंट लिखता हूँ, राइट, सो हमें क्या मिलेगा? एक पूरा, ये पूरा आपको मिल जाएगा. ओके, लेट्स गो एंड सी द आउटपुट नाउ. तो आपको पूरा मिल जाएगा, विच इज बी ओवर हियर. सी, वी हैव गॉट, सी 5, मतलब हमारे पास एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 5. और आपको मैं जैसा बताया, एरे के हमारे किसमें, हम इसमें करते हैं, हम नॉर्मली एक बॉक्स में स्क्वायर ब्रैकेट में हम उसको स्टोर करते हैं. तो स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे पास 5 एलिमेंट्स है. अभी मैंने आपको क्या बताया था? अगर मुझे उसके पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट करना है, ओके, मुझे फैच करना है, तो मैं कैसा कर सकता है? इंडेक्सेस से. ओके, सभी सिद्धेश कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट होगा? 0 पर. सो मैं बोलूंगा 0. ओके, सभी मुझे क्या आउटपुट आएगा? सिद्धेश करके मुझे आउटपुट आएगा. सी, मुझे सिर्फ क्या मिला है? सिद्धेश, राइट. सिमिलरली अब हमारा अनिकेत कौन से इस पे होगा? यहाँ पर 0, राज विल बी 1, अनिकेत विल बी 2. इफ आई से स्टूडेंट्स 2, सो मुझे आउटपुट में क्या दिखेगा? अनिकेत. ओके, सो विच वुड बी अनिकेत ओवर हियर, राइट. सिमिलरली अगर आपको लास्ट वन चाहिए रहेगा तो कौन से उस पे होगा? 0, 1, 2, 3 एंड 4. 5 से स्टूडेंट्स 4, सो मुझे लास्ट वन स्टूडेंट्स मिल जाएगा, विच इज स्मृति ओवर हियर. ऑल राइट, सो हम ऑपरेशंस देख रहे अभी. हम सॉरी, एरे को क्रिएट कैसा कर सकते हैं वो देखा अभी, राइट. क्रिएट कैसा करना, आपको सिर्फ आपका एरे का नाम देना, उसको ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप उसके एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन कर सकते हो. समझ रहे हो? उसके बाद हमने देखा इसके अंदर के एलिमेंट को हम फेच कैसा कर सकते हैं. ओके, नाउ विल बी सीइंग हाउ कैन वी एबल टू ऐड न्यू एलिमेंट. ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे हम उसके अंदर के एलिमेंट को डिलीट कैसा कर सकते हैं. फाइन, एंड लेटर वी कैन सी हाउ कैन वी एबल टू अपडेट दैट एलिमेंट. फाइन. ओके, सो विल बी सीइंग ऑल दिस नाउ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फेच देखा, हाउ कैन वी एबल टू फेच दैट एलिमेंट. ओके, नाउ अगर आपको ईच एंड एवरी एलिमेंट को फेच करना है तो आप फॉर लूप करके भी इसके अंदर के वैल्यू को फेच कर सकते हो. ओके, सो उसके अगर आपको करना है तो आप क्या करोगे? फॉर लेट
i इक्वल्स टू 0, बिकॉज i 0 से क्यों किया, बिकॉज हमारा इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, राइट. i लेस देन स्टूडेंट्स डॉट लेंथ. अगर मैं लेंथ बोलता तो ये लेंथ क्या होता है, लेंथ मतलब आपको स्टूडेंट्स का जितने वैल्यू स्टोर है, तो कितने स्टोर हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, तो हमें लेंथ आएगा 5. ओके, एंड मैंने लेस देन लिखा है बिकॉज हमारा इंडेक्स कहाँ तक जाएगा, 0 1 2 3 एंड 4, तो हमें 5 तक नहीं जाना, तो उसके लिए बिकॉज 5 पे वेरिएबल ही नहीं है कुछ, समझ रहे हो, तो उसके लिए हमने क्या बोला, लेस देन स्टूडेंट्स डॉट लेंथ. ओके, तो आपका लेंथ कहाँ से स्टार्ट कैलकुलेट होगा, 1 2 3 4 5, बिकॉज लेंथ आपका 0 से लेंथ आपका कभी कैलकुलेट होने नहीं चालू होता है, राइट. आपका 1 2 3 4 5 से चालू होगा, बट आपका इंडेक्स इंडेक्स मतलब अगर आपका वैल्यू को फैच करना है इनसाइड एंड दिस एरे, तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं. Okay, now I will do I plus plus. If I do console dot log, मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट्स और i के वैल्यू का, i का वैल्यू विल बी 1 0, राइट. 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा एंड सो ऑन, राइट. सो लेट्स सी एन आउटपुट नाउ. सो सी वी हैव गॉट वैल्यू 1 by 1. ओके, अगर आपको i का वैल्यू भी ये करना है, ओके, so अगर आपको i का वैल्यू भी स्टोर करना है, तो I will say student this is present at index plus i. समझ रहे हो, तो अभी आपका क्या आएगा, स्टूडेंट 1 which is सिद्धेश is present in index 0 and so on. देखो, स्टूडेंट सिद्धेश is present in index 0, राज is present in index 1 and so on. ओके, सो आपका ऐसा फॉर लूप करके भी आप उसमें इटरेट कर सकते हो, बट डोंट वरी, हम यहाँ पर थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट भी देखेंगे थोड़ा एरे में. ओके, जहाँ पर हम मैप कैसा कर सकते हैं. ओके, बिकॉज हम बेसिकली ये फॉर लूप से हम इटरेट नहीं करते हमारे एरे में, हम यहाँ पर मैप करके एक आपका फंक्शन होता है, ओके, फिल्टर करके होता है, वो सब यूज करके हम एरे के एलिमेंट्स के अंदर क्या करते हैं, इटरेट करते हैं. ऑलराइट, ओके. सो आई होप सो आपको फैच का कैसा हम फैच कर सकते हैं एलिमेंट का आपको समझा होगा. Right? Now let us see how can we add new element. Okay, so अगर आपको new element add करना है, what I can do, I can just copy this and I can paste it over here, right? So that you can able to get it. Okay, so हमने अभी को second operation कौन सा देख रहे हैं, add. How can we able to add new element? Okay, so अगर मुझे add करना है new element, so I can say students dot push, and what I want to push now, I want the name Aman. ओके, सो मैं अभी क्या करना है, एक अमन नाम के स्टूडेंट को पुश करना चाहता हूँ. ओके, आई वांट टू पुश मतलब आपको ऐड करना चाहता है. ऐड करने के लिए आपके पास एक पुश फंक्शन होता है, एक पुश मेथड होता है, जहां से आप अपना न्यू एलिमेंट वो एरे के अंदर पुश कर सकते हो. ओके, नाउ लेट अस सी देन आउटपुट स्टूडेंट्स. ओके, सो अभी क्या होगा, आपका ये अमन है ना, ये आपके स्मृति के बाद जाके ऐड हो जाएगा. ओके, सो लेट अस सी सिद्धेश, राज, अनिकेत, राहुल, स्मृति एंड अमन. Okay, so we this way we can add new elements. Okay, now you want कि आपको लास्ट में नहीं ऐड करना है, मेरे को स्टार्टिंग में ऐड करना है. Okay, so during that time आप क्या लिखोगे, instead of this I can say students dot unshift, अरे unshift, और आपको कहाँ पर ऐड करना, मतलब अनशिफ्ट मतलब आपको अभी स्टार्टिंग में ऐड करना है, एट द बिगिनिंग ऑफ योर एरे. सो आई वांट टू ऐड अमन, सेम एलिमेंट अमन एट द बिगिनिंग ऑफ योर एरे. सो अभी आपका अमन कहाँ पर, सी ये मैंने कमेंट डाउन किया, तो अभी आपका अमन लास्ट में ऐड नहीं हुआ रहेगा. अनशिफ्ट अमन, तो अभी कहाँ पर ऐड हो जाएगा, इट विल ऐड इन द बिगिनिंग ऑफ योर एरे. तो सी सिद्धेश के आगे अभी आपका अमन आ गया, और लास्ट से वो हट ही गया था बिकॉज हमने यहाँ से उसको कमेंट डाउन किया था. यस. Okay, so in this way you can able to add new element inside your array. Okay, so आपका push कहाँ पर add करता है, it add at the end of array, right, and this will add at the beginning of array, right. In this way we can add new element inside our array. All right. Okay, now we'll be saying how can we able to delete some element from an array. Okay, or else what we can see it now. Okay, चलो हम डिलीट का ही देख लेते हैं फॉर नाउ. ओके, सो अगर मुझे डिलीट करना है, सो मैं क्या लिखूंगा, स्टूडेंट्स डॉट पॉप. बस स्टूडेंट डॉट पॉप क्या करेगा, आपका लास्ट एलिमेंट आपके एरे से हटा देगा. तो अभी यहाँ पर हमारा लास्ट एलिमेंट कौन सा है, स्मृति, राइट. सो अभी आपको देखोगे आपके एरे में एलिमेंट होगा सिद्धेश, राज, अनिकेत, राहुल. ओके, so अभी हमने क्या बोला, स्टूडेंट्स डॉट पॉप, तो स्टूडेंट्स मतलब आपका एरे का नाम लिखना है, फिर उसके बाद पॉप. तो पॉप आपका मेथड क्या करता है, आपके लास्ट एलिमेंट के एरे को, आपके एरे के लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा.
ऑलराइट, सो विल बी सेइंग इट, सो सी वी हैव गॉट सिद्धेश, राज, अनिकेत एंड राहुल। तो यहाँ से हमारा लास्ट एलिमेंट डिलीट हो गया। ओके, सिमिलरली अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करना होगा तो यू विल से स्टूडेंट्स डॉट शिफ्ट। तो अभी यहाँ पर आपका कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा? आपका फर्स्ट एलिमेंट विच वाज सिद्धेश। आपका फर्स्ट एलिमेंट ऐसा भी डिलीट हो गया, समझ रहे हो? तो आपके पास आएगा राज, अनिकेत, राहुल एंड स्मृति। So we have got Raj, Aniket, Rahul and Smriti in an output, right? So आपका दोनों फंक्शन हमने देख लिया, which was delete. Okay, so let us say delete over here. Okay, so हमने पहला देखा था students students dot pop, right? and pop ऑपरेशन क्या करता है आपका लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है। ओके, so I will say last element will be deleted, all right? यानी यहाँ से आपका कौन सा एलिमेंट डिलीट होता है? स्टार्टिंग एलिमेंट। ओके, स्टार्टिंग एलिमेंट गेट डिलीटेड, ऑल राइट? ओके, सो आपका डिलीट करने के लिए आपके पास अभी पॉप एंड शिफ्ट फंक्शन। ओके, सो पॉप क्या करता है? आपके लास्ट एलिमेंट के डिलीट कर देगा आपके एरे से, एंड आपका शिफ्ट क्या करेगा? आपका स्टार्टिंग ऑफ द एलिमेंट विल बी डिलीटेड, all right? So have we got it, this fetch, add and delete? Have everyone got it, guys? Yes, सबको समझा है all these three operations? Yes, everyone here? Yes, guys. Please respond. Have everyone got it? Apart from Pranati, किसको नहीं समझा है क्या? Where are these guys? Anurag and all haven't joined the meet. We have Jay, Nikita and Pranati. Only three in this group today. Hope so. Exam होगा उसके लिए. Alright, no worries. Fine, let us continue now. Yeah. So hope so. See, even for me, even there is a one student, I will be able to teach you all, right? Okay, so I hope so you have got this three operation on an array, which was कौन सा वाला हमने देखा? fetch कैसा कर सकते हैं आपके एलिमेंट्स को, how can we add new element, how can we delete it. Okay, now let us see how can we update it, right? So we'll be seeing how can we able to update it. So now what I want to update the last element over here. Okay, for example अगर मैंने अभी स्मृति का नाम मैंने गलती से स्टोर कर दिया था एज एन SMRUI, okay, which we have done one spelling mistake हो गई, right? टाइपो एरर करके आपने मतलब गलती से कर लिया था। अभी मुझे क्या करना है, इसका नाम मुझे मतलब आई जस्ट वांट टू चेंज एंड अपडेट द नेम, बिकॉज मैंने यहाँ पर एरर मतलब एक थोड़ा सा टाइपो मिस्टेक कर दिया था, राइट? ओके, सब मुझे कैसे अपडेट कर सकता? पहला आपको वो एलिमेंट के इंडेक्स पर जाना होगा। तो उसका इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3 एंड 4, ऑलराइट? सो आई विल बी सेइंग simple students at an index 4 it's equals to आपको जो अभी नाम देना है वो। okay, so I just want to what I want to do it, I just want to update the name from SMRU to SMRUTI, right? so 0 1 2 3 and 4 फोर्थ इंडेक्स पे मैंने क्या कर दिया? अपडेट कर दिया। ओके, सो जो भी आपका एलिमेंट फोर्थ इंडेक्स पे होगा वो अपडेट होके अभी आपका आ जाएगा स्मृति। ओके, लेट्स गो एंड सी द आउटपुट नाउ, which is over here as an Smriti, right? So in this way we can able to update any of your values from an array. Got it? So I can say update, right? And in this way you can able to update. अभी आपके पास एक option होता है, okay? If you want to add any element or we can say delete and add any element in middle of your array, so आपके पास एक operation होता है splice. What that operation is? Splice. Okay, and how does this splice work? आपका splice का आपको लिखना होता है आपका array का नाम। okay, so I will be saying the array name dot आपको कौन सा यूज करना होता है? splice function. okay, ये splice function में अभी आपको देना होता है 3 पैरामीटर्स। ओके, 3 पैरामीटर्स मतलब 3 आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट होता है आपको कौन से इंडेक्स से आपका वैल्यू को रिमूव करना है। so if I say 1, अभी मुझे समझो मुझे राज और अनिकेत को निकाल के मुझे एक नया वैल्यू स्टोर करना है विच विल बी राकेश, ऑलराइट? सो मेरे को क्या करना है? दो स्टूडेंट्स को निकालना है, राज एंड अनिकेत, और ये दोनों
क्या करना है, मुझे ये दोनों स्टूडेंट्स को निकाल के मुझे क्या करना है, मुझे आई विल से क्या मुझे एक नया स्टूडेंट्स का ऐड करना है विच इज राकेश. सो आई विल बी सेइंग वन विच इज एन इंडेक्स वन. ओके, सो इट विल बी एन स्टार्टिंग इंडेक्स. तो वन से स्टार्ट होके मेरे को किधर तक जाना है, अनिकेत को निकालना है, राइट. सो आई विल से 1, 2. ओके, अगर मैं 3 करूंगा तो आपका राज भी निकलेगा, अनिकेत भी निकलेगा, राहुल भी निकलेगा. समझ रहे हो. तो आई एम सेइंग 1, 2. तो आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ओके, कौन सा इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, राज. तो इट इज इंडेक्स 1. ऑलराइट, उसके बाद आपने कितने मतलब आपको कौन से इंडेक्स तक आपको निकालना है, तो राज एंड अनिकेत को निकाल के मेरे को कौन सा अभी थर्ड पैरामीटर होता है, आपको क्या ऐड करना है, तो मुझे ऐड करना है विच वॉज राकेश. तो मैं बोलूंगा राकेश. ओके, नाउ लेट अस डू इट विद एन दिस. आई विल बी सेइंग स्टूडेंट्स डॉट स्प्लाइस. स्प्लाइस में हमें पहला इंडेक्स क्या होता है, आपका स्टार्टिंग इंडेक्स. आपको मुझे कहाँ से निकालना है, राज से निकालना है. आई विल बी सेइंग 1, कॉमा आपको कहाँ तक निकालना है, मुझे अनिकेत तक निकालना है. तो अनिकेत का क्या है, 0, 1 एंड 2. तो मुझे अनिकेत तक निकालना है, तो मैं बोलूंगा 2. और उसके बाद आपको क्या ऐड करना है, मुझे ऐड करना है वहां पर विच इज राकेश. ओके, सो अभी आपका आउटपुट में क्या आएगा, अभी आएगा आपका सिद्धेश, फिर राज और अनिकेत निकाल के आपके राकेश में रिप्लेस हो जाएंगे एंड राहुल एंड स्मृति. ओके, नाउ लेट्स इसको हम ऐड अच्छे से लिख देते हैं विच वॉज स्मृति, राइट. सो अभी आपका आउटपुट क्या आएगा, which will be Siddesh, Rakesh, Rahul and Smriti. Siddesh, Rakesh, Rahul and Smriti. Yes, so this operation आपको splice operation से आप क्या कर सकते हो, in middle of array आप कहाँ पर भी उसको ये कर सकते हो. क्या कर सकते हैं, वैल्यू के इंसर्ट करके आपको डिलीट करके आपको वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो. ऑलराइट, सो होप सो आपको एरे का ईच एंड एवरी दिस ऑपरेशन समझा होगा विच वॉज फेच कैसा कर सकते हैं, ऐड कैसा कर सकते हैं, डिलीट एंड अपडेट. यस, समझा है सबको. यस गाइस. Yes? Okay, great. Fine. So let us move ahead now. Okay, and which will be saying the this one, which is an array functions, right? So हम क्या देखेंगे अभी, array के functions देखते हैं, which is this one. मतलब एक advanced function होते हैं, right? So we'll be saying it now. Fine. So array के function हम देखेंगे अभी. All right. So first of all, we'll be seeing a function known as map. ओके, सो हमें क्या देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये इसको ही कॉपी कर लेता हूँ. ऑलराइट, और हम क्या इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या करते हैं, एक एरे बनाते हैं ऑफ ए नंबर. सो आई कैन से लेट, ओके, and let us name this array as number. Okay, because a number का array. Okay, and let us store the number 1 2 3 4 5. तो हमने 5 नंबर का एक एरे बना दिया, राइट. ओके, अब हम पहला एक कौन सा देख रहे हैं, मैप. ओके, दिस ऑल आर द एडवांस टॉपिक ऑफ एन एरे. ओके, फाइन. तो हम पहला फंक्शन कौन सा देख रहे हैं ऑफ एन एरे, विच इज मैप. तो आपका मैप फंक्शन क्या करता है, बेसिकली आपके हर एक एलिमेंट को आपको मैप करेगा, वो रिटर्न भी कर सकता है और कुछ उस पे एडिशनल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं. सो ये मैप आपका क्या करता है, बेसिकली यूज टू मैप. ओके, अगर मुझे इसको फॉर नाउ अगर कैसा क्या वर्क करता है मैं आपको बता देता हूँ. तो आपको लिखना होता है नंबर्स, मतलब आपके एरे का नाम डॉट मैप. इसके अंदर आपको क्या करना होता है, एक फंक्शन पास करना होता है. क्या करना होता है आपको, फंक्शन. तो हम क्या करेंगे, एक एरो फंक्शन पास करेंगे. तो एरो फंक्शन का हमारे पास कैसा होता है, आपको लिखना होता है आपका दिस, मतलब आपका आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स लेने के लिए. इट कैन बी ए बी सी, राइट. ओके, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है दिस. ओके, इसके बाद एरो हो जाएगा, एरो जैसा, राइट. इसके बाद इन दिस वे योर एरो फंक्शन इज बीन रिटर्न, राइट. फाइन. सो हम क्या करेंगे, सेम वे में हम यहाँ पर एक फंक्शन पास करेंगे. सो कैसा पास करेंगे, पहले आपको एक दिस करली दिस राउंड ब्रेसेस ओपन करना है. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं पास कर रहा हूँ एक्स, इसके बाद आपको एरो फंक्शन, तो एरो जैसा आपको लिखना है सिंबल ओ ये, राइट. सो देखो, समझो. सो देखो, ये एक आपका एरो फंक्शन हो गया, राइट. देखो, दिस इज वन एरो फंक्शन जैसा हमने यहाँ पर बनाया है. यस. ओके, सो दिस इज एरो फंक्शन. हमने क्या कर दिया, ये एरो फंक्शन से हमें अभी क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर के एलिमेंट को एक एक को मैप कर रहे हैं. ओके, इफ आई डू console.log, what I do, if I do console.log x, let us see an output now. ओके, तो बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, पहले आपको मैप फंक्शन के अंदर आपको एक एरो फंक्शन पास करना होता है.
ओके और वो हमारे पास एरो फंक्शन हमने पास कर दिया इन दिस वे। और ये x क्यों पास किया, बिकॉज x विल पॉइंट डाउन टू ईच एंड एवरी एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। ऑलराइट, सो अभी आपके अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा x को, तो आपको आएगा 1 2 3 4 5 इन एन आउटपुट। ओके सो लेट्स गो एंड सी एन आउटपुट नाउ। सो इट्स ओवर हियर 1 2 3 4 5। ओके, अभी बेसिकली आपका मैप फंक्शन क्या करता है, आपको सिर्फ वो मैप नहीं कर देता, मतलब आपको अभी समझो, आपको सिर्फ उसके वैल्यू को मैप नहीं करेगा, अगर चाहिए तो आपको एक न्यू एरे को जनरेट भी कर सकता है। ओके क्या करेगा, एक आपको न्यू एरे को जनरेट करके देगा। ओके सो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, इसका इसके अंदर के जो भी एलिमेंट्स है उसके स्क्वायर को मुझे एक न्यू एरे में बनाना है, मतलब एक न्यू एरे को मुझे इसको स्टोर करना है। ओके सो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोल दूंगा रिटर्न। मुझे क्या करना है, हर एक वैल्यू के मुझे स्क्वायर को रिटर्न करना है। ओके सो मैं बोलूंगा x दिस स्क्वायर को कैसा हम करते हैं, डबल दिस रेस टू 2, राइट। और एल्स हम क्या कर सकते हैं, x इंटू एक्स, तो x इंटू एक्स भी क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, राइट। ओके सो x इंटू एक्स इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर, राइट। सो अगर ये रिटर्न कर रहा है तो मुझे किस में स्टोर करना होगा, एक वेरिएबल में, राइट। ओके सो आई विल से लेट array, or we can say new array for now. Okay, new array equals to this. So आपका ये अभी क्या करेगा, जितने भी आपके वैल्यूज है वो अभी 1 आएगा पहला x में, तो 1 का स्क्वायर एक न्यू एरे में, मतलब ये क्या करता है ना, बेसिकली आपको एक एरे जैसा रिटर्न करेगा। ओके सो हर बार वो क्या करेगा, एक आपको पूरा एक एरे के अंदर जितने भी आपके नंबर्स है उसका स्क्वायर आपको रिटर्न कर देगा। ओके अभी आपको देखना है, तो हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग ये न्यू एरे को हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। ओके सो हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग किसको करेंगे, न्यू एरे को हम प्रिंट करते हैं। ऑलराइट फाइन, सो लेट अस सी हमें क्या आउटपुट आएगा, जैसा हमने बोला था वही आता है क्या, स्क्वायर करके हर एक एलिमेंट का आता है क्या। यस सो लेट्स गो एंड सी इट। हमें क्या है आउटपुट, 1 4 9 एंड 25। यस ओके जस्ट वेट गाइस, जस्ट वेट। क्या हो ऊपर से ना मैं क्लास मैं क्लास में बच्चों, तो रुक जाओ थोड़ा सा और। या सो सॉरी गाइस फॉर एन इंटरप्शन। यस फाइन, सो हमें क्या मिलता है, बेसिकली आपका भी एरे में क्या मिल रहा है, जैसा हम बोल रहे थे स्क्वायर करके हमें एलिमेंट मिल रहा है, राइट, विच इज 1 4 9 16 एंड 25। यस हमें क्या मिल रहा था अभी, स्क्वायर करके। नाउ सिमिलरली हमें कुछ भी हम रिटर्न कर सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको एक रिटर्न करके एक स्टेटमेंट होता है वो आपको बताया। ओके सो हम क्या कर रहे हैं, इसके वैल्यू को हम रिटर्न करके हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू एरे हम बना रहे हैं। ओके साहब अभी ये वैल्यू से हम आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो, इट्स नॉट लाइक आप स्क्वायर ही रिटर्न कर सकते हो। ओके आप कुछ परफॉर्म कर सकते हो ऑपरेशन, एंड आफ्टर दैट परफॉर्मिंग दैट ऑपरेशन आप उसके वैल्यू को रिटर्न कर सकते हो। यस सो हैव यू गॉट द बेसिक सिंटैक्स, व्हाट डज दिस मैप डू। यस बिकॉज अगर आपको सिर्फ आपके हर एक वैल्यू को पॉइंट करना था, तो आप फॉर लूप से भी कर सकते थे, बट आप फॉर लूप से रिटर्न नहीं कर सकते हो। समझ रहे, आप अगर आपको न्यू एरे बनाना है तो आप न्यू एरे नहीं बना सकते हो, तो फॉर दैट कंसर्न हम क्या करेंगे, हम हमारा मैप फंक्शन यूज करते हैं। यस सो हम अगर मुझे आपको बेसिक इसमें छोड़ इसमें समझाना है, तो आपका मैप फंक्शन क्या करता है, मैप फंक्शन विल, or we can say, point to each element of array, and what it can do, it can also return one new array. ओके हम रिटर्न भी कर रहे हैं एक न्यू एरे, राइट, तो हम जो भी रिटर्न करेंगे वो एक एरे में आपका स्टोर हो जाएगा। यस हैव एवरीवन गॉट इट, हाउ डज दिस मैप फंक्शन वर्क। यस गाइस, यस या amazing. All right, now let's go and see this the second function, which is the filter. Okay, array filter, राइट सो हमने मैप देखा, मैप क्या करता है, बेसिकली आपके हर एक वैल्यू को मैप कर देगा। ओके तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम सेम एरे को कॉपी करते हैं। ऑलराइट नाउ लेट्स, हम क्या करेगा, हम देख रहे हैं द फंक्शन विच इज फिल्टर। ओके तो फिल्टर क्या करेगा हम देखेंगे। नाउ अभी क्या करते हैं, एज सुन एज योर
गेट दिस नेम फिल्टर। तो आपको क्या एक माइंड में आता है, एक कुछ आपको फिल्टर करके देगा, राइट। तो मैं क्या चाहता हूँ, एक न्यू एरे मिले जहां पर मुझे नंबर स्टोर हो कुछ एक सर्टेन कंडीशन पर। ओके, सो आपका क्या करके सर्टेन कंडीशन पर आपको एरे रिटर्न करता है। ओके, सो मैं क्या करूंगा, नंबर्स डॉट फिल्टर। ओके, यहाँ पर भी आपको एक एरे फंक्शन, मतलब आपके दिस, आपको एक एरो फंक्शन पास करना है। ओके, तो कैसे आपको पास करोगे, दिस राउंड ब्रेसेस, इसके बाद आपको एरो फंक्शन हम ऐसा पास करते हैं, राइट, जैसा हम नॉर्मली पास करते हो। तो हम कैसा पास कर रहे हैं, एक्स, उसके बाद एरो का सिंबल एंड दिस वे। ओके, सो देखो यहाँ से हमने वो इसमें पास किया, समझ रहे हो। सो इन दिस वे वी आर पासिंग अ एरो फंक्शन। यस, ओके। सो हम अभी क्या करेंगे, हम क्या रिटर्न करेंगे, आई विल जस्ट रिटर्न द नंबर। एक आपको कंडीशन पे आपको रिटर्न करना है यहाँ पे। ओके, सो आई विल रिटर्न द नंबर x विच इज ग्रेटर देन 3। आप यहाँ पर x के जगह कुछ भी ले सकते हो, नॉट ओनली x, आप अपना नाम भी लिख सकते हो, बट एक आपका एक वेरिएबल है जो आपके हर एक वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। ओके, सभी ये रिटर्न कर रहे हैं x ग्रेटर देन 3, तो हमें कौन सा वैल्यू आएगा, 4 एंड 5 हो गया। सभी एक रिटर्न करेगा तो हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा, लेट आई कैन से बिग नंबर इक्वल्स टू दिस। ओके, सभी हमारे बिग नंबर में क्या स्टोर हो जाएगा, लेट अस कंसोल डॉट लॉग दिस बिग नंबर, राइट। सो अभी हमारे पास आएगा आउट एक एरे which will return 4 and 5. So see, we have got this array which have written this two element array of an 4 and 5. Yes, so filter function क्या करता है आपका, सिमिलरली मैप जैसे काम करेगा, बट एक आपके कंडीशन पे वो रिटर्न करता है, समझ रहे हो। ओके, सो क्या करेगा आपका, इट विल पॉइंट टू ईच एलिमेंट, राइट, पॉइंट टू ईच एलिमेंट एंड रिटर्न न्यू array based on certain condition। ऑलराइट, तो आपका क्या करेगा, एक हर एक एलिमेंट को पॉइंट करेगा, वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा आपको जो भी आपने कंडीशन दिया रहेगा वो। ओके, सो 1 को पहला पॉइंट करेगा, 1 ग्रेटर देन 3 है ना, तो वो रिटर्न ही नहीं करेगा। 2 को पॉइंट करेगा, 2 भी नहीं है तो वो रिटर्न नहीं करेगा, राइट। फिर 3 को पॉइंट करेगा, 3 भी नहीं है तो रिटर्न नहीं करेगा। 4 को देखेगा, ओके, तो अगर 4 इज ग्रेटर देन 3 तो वो रिटर्न कर देगा और हमारे बिग नंबर एरे में स्टोर हो जाएगा। ओके, अगर आपको देखना है वो सच में हर एक पॉइंट कर रहा है कि नहीं, तो आप कंसोल डॉट लॉग कर दो एक्स को, राइट। सो अभी आपके एक्स में हर एक वैल्यू आएगा, फिर उसके बाद आपके रिटर्न में चेक होगा, सी 1 2 3 4 5, और हमारे एरे में 4 एंड 5 रिटर्न है, बिकॉज दिस बोथ आर ओनली नंबर, राइट, which is greater than 3। yes, have you guys got this function which is filter? yes guys, समझा आपको फिल्टर कैसा वर्क होता है। yes, सिमिलर लाइक मैप, बट ये आपको एक फिल्टर, मतलब आपको फिल्टर करके देता है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। yes, ऑलराइट, ओके, हम अभी हमारा लास्ट देखेंगे विच इज रेड्यूस। ओके, सो हमारा most of the thing will be covered in an array। okay, so each and every operation that we want will be covered it over here। okay, so last one we are seeing an reduce। so reduce basically क्या कर देगा, आपके पूरा array को एक पूरा एक कंक्लूजन दे देगा। ओके, सो अभी मैं क्या चाहता हूँ, सेम एक array ले लेते हैं, दिस वन, राइट। हम क्या करते हैं, सेम एक array लेते हैं। ओके, एंड नाउ व्हाट आई विल डूइंग, आई वांट, आपका सिंटैक्स होते हैं यहाँ पर इन द सेम वे नंबर, मतलब आपके एरे का नाम डॉट रेड्यूस, और इसमें आपको तीन पैरामीटर, सॉरी, दो पैरामीटर्स पास करने होते हैं इनसाइड वन एरो फंक्शन। ओके, सो आपके दो पैरामीटर्स क्या हो गए, फॉर एग्जांपल x1 x2। यहाँ पर मैंने दो पैरामीटर्स क्यों बोले आपको भी समझेगा। जब आपका फर्स्ट पैरामीटर होता है x1, एक आपके प्रीवियस एलिमेंट को मार्क ये करेगा, क्या करेगा, वो पॉइंट डाउन करेगा, और x2 क्या करेगा, आपके नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, राइट। एंड इफ आई डू रिटर्न, अगर मैं रिटर्न करूंगा, सॉरी स्पेलिंग इज रॉन्ग, रिटर्न एडिशन ऑफ x1 plus x2। okay, and let me store inside one variable, let answer equals to this one। if I do console.log the answer will be console.log, and I want to do the this, which is the output of this answer. The answer will be addition of each and every element of an array। okay, how does this work, I will make you understand now, don't worry। okay, let us see an output क्या होगा, which will be 5 plus 4 9, 9 plus 3 is how much, 12, 12 plus 2 is 14, and 14 plus 1 is 15। all right, so let's go and see हमारे पास output क्या आ रहा है, which is 15। okay, now let us see how does this work।
ओके, सो रेड्यूस फंक्शन आपके एरे मतलब आपका जो भी आपका एरो फंक्शन होता है, राइट, रेड्यूस के अंदर जो हम एरो फंक्शन, उसके अंदर हमें एटलीस्ट दो पैरामीटर्स पास कर देते हैं, विच इज इट कैन बी एनीथिंग। तो आई हैव पास x1 एंड x2। ओके, अभी x1 किसको पॉइंट करेगा? आपका प्रीवियस एलिमेंट को, तो आपका फर्स्ट फर्स्ट इटरेशन में, ओके, फर्स्ट इटरेशन में आपका x1 के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? 1 स्टोर होगा, और x2 में क्या स्टोर होगा? 2। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न x प्लस प्लस x1 प्लस x2, तो आपका एडिशन क्या होगा? 3। ओके, सो आपका x1 प्लस x2 एक नॉर्मल एक आपके एडिशन में स्टोर हो जाएगा। ओके, सो नाउ अभी आपके x1 में क्या स्टोर होगा? एडिशन ऑफ दिस बोथ नंबर 1 प्लस 2, बिकॉज आपका x1 क्या स्टोर करता है? प्रीवियस प्रीवियस एलिमेंट, और ये आपका क्या करता है? करंट एलिमेंट को पॉइंट डाउन करना है। ओके, सो फर्स्ट इटरेशन में आपका प्रीवियस एलिमेंट क्या होगा? दिस एंड दिस, राइट। बट अभी आपका एक बार प्लस होने के बाद, मतलब आप जो भी ऑपरेशन करने के बाद, अभी आपके प्रीवियस वाले एलिमेंट में आपका क्या होगा? 3 होगा, एडिशन ऑफ दिस बोथ नंबर। बट अभी आपके करंट, जहां पर पहला क्या था? 2 पर था, राइट, बट अभी आपका करंट कहां पर आ जाएगा? 3 पर आ जाएगा। सिमिलरली अभी आपके x1 अपडेट हो जाएगा, 3 प्लस 3 6। समझ रहे हो? ये आपका सेकेंड इटरेशन है। ओके, दिस इज योर सेकेंड इटरेशन। ऑलराइट, इसके बाद आपका आता है थर्ड इटरेशन। यस, दिस इज द थर्ड इटरेशन। अभी आपका x2 कहां पर पॉइंट करेगा? जहां लास्ट टाइम 3 पर था, अभी 4 पर। ओके, सो अभी x1 पे क्या स्टोर होगा? x1 प्लस x2 विच इज 10। ओके, अभी आपका आएगा फोर्थ इटरेशन। ओके, अभी आपके x1 पे आया इधर 10, राइट, एडिशन ऑफ दिस। अभी आपके x2 में क्या स्टोर हो जाएगा? 4 था, अभी 5 5। ओके, तो अभी आपका x1 में स्टोर हो जाएगा 15। ओके, इसके बाद वो नंबर नहीं है तो वो रिटर्न कर देगा x1 को, और हमारे आंसर में रिटर्न आ गया 15। यस, एंड इन दिस वे वी हैव गॉट दिस आंसर 15, राइट। तो आपका रेडियस फंक्शन क्या करता है? बेसिकली इट विल रिटर्न वन वैल्यू बेस्ड ऑन आप सर्टेन ऑपरेशन। ओके, सो हमने क्या कर दिया? एडिशन ऑफ टू नंबर्स को ऑपरेट करके हमने बेसिकली एक एडिशन ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट फ्रॉम एन एरे को रिटर्न कर दिया, राइट। सो रेड्यूस क्या करता है? आपका बेसिकली एक वैल्यू रिटर्न करता है बेस्ड ऑन वन दिस, okay, which is I will say based on one certain operation. So I will say return one value based on certain condition, you can say. All right, okay, so what it will do? It will just return one value based on certain condition. Yes, so which is over here, हमने वो नंबर को ही क्या कर दिया? कमेंट डाउन कर दिया, राइट। सो लेट्स कॉपी दिस, paste it over here, and this is how redeclared already been declared here, right? For that concern, yeah, we would have got the output 15. Yes, so have everyone got it? How does this reduce function work? Yes, guys? Yes, great. Okay, now let's move ahead and see what are objects now. Fine, तो हमने array के सब अभी operations देख लिए and methods देख लिए. Yes, now let us see what do I mean by objects. राइट, हम क्या देखे अभी यहाँ पर? हमें हमें देखा रिटर्न स्टेटमेंट एंड एरे एंड ऑपरेशन, देन एरे के हमारे एडवांस मेथड्स देखे। फाइन, नाउ लेट अस सी व्हाट डू आई मीन बाय ऑब्जेक्ट्स। ओके सर, एज सून एज यू गेट दिस वर्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब एक आपका कुछ भी एक सामान होता है, थिंग। ओके, एंड ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैव वन प्रॉपर्टी, ओके, हैव टू प्रॉपर्टी, राइट, व्हिच इज द दिस वन की एंड वैल्यू। ओके, व्हाट डू आई मीन बाय की एंड वैल्यू? अभी आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल में आप समझो, एक कार है, तो कार एक आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अभी इसके पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज हो गए, राइट, बट ये प्रॉपर्टी हमेशा एक पेयर में होते हैं। क्या होते हैं? एक आपके पेयर में होते हैं, की एंड वैल्यू के। व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज दैट, एग्जांपल अभी आपके पास है एक कार, एक ऑब्जेक्ट है, राइट। अभी कार के अंदर जितने भी प्रॉपर्टी हो गए, मैंने क्या बोला? एक हमेशा वो पेयर में होते हैं, पेयर आई मीन की एंड वैल्यू पेयर में होते हैं। ओके, सो यहाँ पर अभी आपका कार क्या, कंपनी का नाम क्या है? फॉर एग्जाम्पल इट्स बिलोंग्स टू किया, राइट, सो इट्स कंपनी इज किया। ऑलराइट, नाउ कार का एक प्राइस होगा, तो मैं बोलूंगा प्राइस विच इज 10 लाख। ऑलराइट, सो नाउ हमारा क्या होगा? प्राइस विल बी 10 लाख। ओके, सो आपके हम क्या कर रहे हैं? एक अलग अलग प्रॉपर्टी कर रहे हैं वो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट का, विच इज कार।
ओके सो एक क्या कर रहे हैं हम, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है. ओके दिस ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट वन रियल वर्ल्ड एंटिटी. एंटिटी नथिंग बट आपको जो बोला है नथिंग इन सिंपल वर्ड, आप समझो एक सामान है जहाँ जिसको बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं राइट, एंड वो प्रॉपर्टीज हमेशा क्या होता है की एंड वैल्यू के पैर में होते हैं. समझ रहे हो? तो जैसा मैंने आपको एक कार का एग्जांपल दिया जहाँ पर उसका कलर कुछ भी हो सकता है राइट, उसके प्राइस हो सकते हैं राइट, उसका एक माइलेज होगा राइट 20 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर राइट, एंड उसका फिर कितने नंबर ऑफ सीट्स उसमें अवेलेबल है राइट, and what else we can have the company from which company do it belong right, and each and everything right. तो इसके ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं राइट, एंड फॉर दैट कंसर्न हम क्या करते हैं, हम वी मेक यूज ऑफ एन दिस object over here. All right. Okay. So let's see how can we able to define an object in a this JavaScript. Okay. So object में क्या बोले, same thing. Okay. So I will say let हम कार का एग्जांपल लेते हैं. Let car equals to जैसे आप एरे को स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं तो आपको इसमें आपका ऑब्जेक्ट को आपको करना होता है कर्ली ब्रेसेस. ओके सो कर्ली ब्रेसेस में मैंने क्या बोला, आपके हर एक प्रॉपर्टी का हर एक मतलब हर एक प्रॉपर्टी एक पैर में होता है. ओके ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी इज इन वन पैर. तो मैं अभी बोलूंगा द नेम ऑफ माय कार इज किया. ओके नाउ अगर इसके बाद आपको सेपरेट करना है तो यूज टू यूज कॉमा जैसा हम हमारे एरे में कर रहे थे. ऑलराइट अभी मेरे को क्या करना है, इसका प्राइस which is how much, okay, which is समझो 10 lakh. Yes. Okay. Now we are getting this error. Reason behind this is वो कॉमा में उसको लगता है मैं न्यू लाइन पढ़ जा रहा हूँ. समझ रहे हो? Okay. Now we have got this price. Now what we'll be doing? Now let us say we are having the color. What can be the color of this? We can have the white color for now. We can even have the black as well, right? Now let us see. We have the mileage करके this. Now what can have, we can have the mileages of 30. Okay, 30 kilometer per hour. So it's a string. So I can say 30 kilometer per hour. राइट. सो अभी हमारे पास क्या आ गया, एक कार का एक अलग अलग वैल्यू की एंड वैल्यू होता है. फाइन. ओके ईच एंड एवरीथिंग विल हैव वन की एंड वैल्यू. फाइन. सो दिस वी कॉल इट एज की एंड दिस इज वन वैल्यू. तो की क्या है हमारा नेम, उसका वैल्यू क्या है किया. प्राइस इज वन की, 10,000 10 लाख इज एन वैल्यू ऑफ इट. ओके सो हमारे पास कितने प्रॉपर्टी है, 1 2 3 4 और एक कार का एक आपका ऑब्जेक्ट है राइट. अभी मेरे को इसको प्रिंट करना है तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूं का तो आपका आउटपुट में एक आपको ऑब्जेक्ट जैसा मिलेगा. तो ऑब्जेक्ट आपका हमेशा किस में होता है, कर्ली ब्रेसेस में आपको आउटपुट दिखेगा. फाइन. लेट अस गो एंड सी. तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया जहां पर हमारे पास इतने प्रॉपर्टीज है, नेम प्राइस कलर माइलेज राइट. ओके नाउ अगर मुझे इसके अंदर के वैल्यूज को फेच करना है तो मैं कैसा करूंगा, पहले आपको लिखना होता है उसका ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद डॉट उसका की दिस की का नाम. ओके सो मेरे को अगर किया चाहिए तो मैं बोलूंगा कार डॉट नेम. ओके सॉरी वेट एंड रोड कार डॉट नेम. तो मुझे आउटपुट क्या आना चाहिए, किया. Let's go and see. So we have got this Kia. Okay, in this way you can fetch the values from an object. Okay, if I say now mileage, so हमें क्या आएगा, okay, we would have got 30 kilometer per hour over here, right? So in this way you can able to fetch the this values from an object. All right. Now if you want to what we can say update any values, okay, for now अभी समझो आपके गाड़ी का it's not 30 it's 20 kilometer right. So okay, so what I can do, how can we able to update it, आपको लिखना है कार because it's an object and इसके अंदर का आपको कौन सा आपको ये करना है माइलेज. ओके आई वांट टू अपडेट माय माइलेज. तभी आपको माइलेज क्या अपडेट करना है, आई वांट टू डू इट 20 किलोमीटर पर आवर. ओके नाउ लेट अस सी हमारा कार डॉट माइलेज क्या होता है. Okay so it would be 20 kilometer per hour which has been updated. So in this way you can able to update your this. What you can do, you can able to update your key because mileage is key from your okay from your object. All right and this is your object. All right तो ऑब्जेक्ट के हम पहला कैसा फेच कर सकते हैं डेटा को हमने देखा, हाउ कैन एबल टू अपडेट इट राइट. अगर आपको डिलीट करना है तो हम वो देखते हैं. ओके एंड सिमिलरली आपको ऐड करना है तो वो भी देख लेते हैं. ओके सो अपडेट देख लिया अभी. फाइन. नाउ लेट अस सी द डिलीट वन. सो डिलीट इट आल्सो सिंपल. ओके आपको क्या लिखना है, डिलीट
आपको क्या डिलीट करना है, तो मुझे डिलीट करना है फॉर एग्जांपल कार डॉट माइलेज और कलर, तो मैं करता हूँ कार डॉट कलर। ओके एंड लेट मी गेट दिस, मैं पूरा कार के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, हमारा प्रॉपर्टी कलर को हटा दे रहे हैं। So, हमारे पास होगा नेम प्राइस एंड माइलेज। लेट्स गो एंड सी द आउटपुट नाउ। So we have got name, price and mileage. So in this way you can able to delete the values from an object, right? It's just simple. All right. अभी हमारे पास होगा, आपको ऐड करना होगा तो आप कैसे ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी आपको क्या ऐड करना है, इसके एक कार के अंदर कितने सीट्स है, राइट। सो आई कैन, हाउ कैन आई एडिट, हाउ यू कैन एबल टू एडिट, आपको लिखना होता है ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, उसके बाद आपको क्या ऐड करना है, अभी मुझे ऐड करना है सीट्स इक्वल्स टू, अभी 7 सीटर कार, सो यू कैन से 7, तो विच इज आपको कार डॉट, आपको जो भी आपको की देना है वो और उसका वैल्यू होगा ये। ओके नाउ लेट्स कंसोल दिस कार, तो आपको आएगा नेम प्राइस कलर माइलेज एंड सीट्स। Okay, let's go and see. So see, name, price, color, mileage, and seats, which is at the end. Yes, have you got it, guys? Yes, each and every operation of an object. Yes, सबको समझाया अच्छे से? Yes, Pranati. Yeah, all right, amazing. Okay, so in this way, what you can do, you can able to perform different operations on an objects. Fine. Now अभी हमें क्या करना है, अभी हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो देखेंगे। ये तो एक नॉर्मल आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ऑब्जेक्ट्स देखा था, बट जब आप जेएसएन डेटा के बारे में बात करते हो, जेएसएन इज नथिंग बट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ओके, जहां पर आपके पास अभी जेएसएन डेटा क्या होता है बेसिकली, अभी आपको समझा, आप एपीआईज का आपको पता है किसको, हैव एनीवन हर्ड अबाउट द एपीआईज? यस, आप दोनों में से किसने एपीआई के बारे में सुना है? यस, मोस्टली हमें सुना होगा। ऑल राइट, अगर नहीं सुना होगा तो बेसिकली क्या होता है, एपीआई क्या होता है, बेसिकली आपका एक यूआरएल होता है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्टॉक मार्केट का एक ऐप देता हूँ, फॉर एग्जांपल एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, सो आप क्या करते हैं, आप एक स्टॉक मार्केट के लिए आप क्या कर रहे हो, आप अपना एक वेबसाइट बना लो। ऑल राइट, ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टॉक मार्केट के लिए एक वेबसाइट बना रहा हूँ। ओके, सो मैं वहां पर देखो, आपका वेबसाइट फर्स्ट ऑफ ऑल डायनामिक होगा, बिकॉज आपके स्टॉक मार्केट के ईच एंड एवरी सेकंड आपका स्टॉक मार्केट का वैल्यू चेंज होता रहता है, राइट। सो हम क्या करते हैं, हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, फॉर एग्जांपल आई लिव इन मुंबई, राइट, सो फॉर दैट कंसर्न मैं आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। ओके, सो क्या होता है बेसिकली, आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाले आपका एक एपीआई देते हैं, जहां पर आपका ये हर एक स्टॉक का वैल्यू का आपका वैल्यू मतलब आपका प्राइसिंग डिस्क्लोज होता है, राइट। ओके, सो वो एपीआई के थ्रू आप क्या करते हैं, आपके जो भी मतलब फॉर एग्जांपल अभी आपने बहुत सारा अप स्टॉक करके है, एक फिग्रो करके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, वहां पर आपने देखा होगा, वहां पर कंटिन्यूसली आपके वैल्यूज चेंज होते रहते हैं। तो व्हाट दे डू इज दैट, वो उनका एपीआई यूज करते हैं। एक क्या होता है, यूआरएल होता है, यूआरएल के अंदर आपके बहुत सारे जेएसएन डेटा होते हैं। जेएसएन डेटा मतलब आपके पूरे ऑब्जेक्ट्स, मतलब एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट में आपके डेटा होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कौन सा भी समझो, आपका टीसीएस का, या तो फिर आपको समझो एमआरएफ टायर का, ओके, ऐसे बहुत सारे आपके स्टॉक्स होते हैं। ऑलराइट, ओके, बिकॉज हम हमारा स्टॉक्स का इवन आई डोंट हैव दैट मच आइडिया। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपको क्या होता है, वैल्यूज चेंज होते रहे, राइट। सब एपीआई के थ्रू क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करता है और उसका आपके डायनामिकली क्या करता है, आपके डायनेमिकली आपके वेबसाइट में फैच करके वहां पर प्लेस डाउन करते हैं। सो ईच एंड एवरी टाइम आपका ऑब्जेक्ट का वैल्यू चेंज होता है, वहां पर आपका जो भी डेटा है वो भी चेंज होता रहता है। ओके, सो आपका एपीआई कैसा काम करता है, एपीआई मतलब अगर आपको दूसरे का वेबसाइट, ओके, तो बिकॉज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी एक एप्लीकेशन होगा वहां पर, राइट, बट वहां से हमें क्या करना है, वहां का डेटा हमें हमारे वेबसाइट पर दिखाना है, तो हम क्या यूज करते हैं, एपीआई का। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, तो ये क्या करते हैं, आपका दोनों के बीच में एक इंटरफेस जैसा काम करता है, एक ब्रिज जैसा काम करता है। ओके, जहां पर हम हमारा डेटा को पास करते हैं। ओके, सो हम हमारा क्या करते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है हमारे वेब एप्लीकेशन में हम दिखा रहे हैं, समझ रहे हो। तो इन दिस वे आपका एपीआई वर्क, और जो भी आपका डेटा आपके इसमें आता है, तो वो कौन से फॉर्मेट में होता है, वो फॉर्मेट में होता है जेएसएन डेटा। जेएसएन मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ओके, एंड इन दिस वे विल बी लर्निंग दिस जावास्क्रिप्ट मतलब एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो वो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट हम इसलिए सीख रहे हैं बिकॉज आपका जो भी जेएसएन डेटा होता है, ओके, वो आपके वो फॉर्मेट में होता है एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट में। ओके, फॉर नाउ
लेट आपको एपीआई तो अभी समझ गया होगा, एपीआई से आप क्या करते हो, दूसरे के वेबसाइट का डेटा आपके वेबसाइट पर लेके आते हो। यस, समझा आपको एपीआई क्या होता है? ओके, आपको एक बेसिक एग्जांपल दिया। ओके, एक बेसिकली आपकी यूआरएल ही रहता है वो, ऐसा नहीं कि कुछ अलग दिखता होगा। इट्स नथिंग, इट्स नॉर्मल सिंपल यूआरएल, बट वो यूआरएल में बहुत सारा डेटा पास होता है, समझ रहे हो? और वो डेटा जब हमें मिलता है तो अलग अलग फॉर्मेट में होता है। बट हम अभी कौन सा सीख रहे हैं, और जावास्क्रिप्ट वाला। हम हमारा वो बेसिकली ना, मोस्ट ऑफ द एपीआईज के जो भी डेटा होते हैं वो होते हैं जेएसएन फॉर्मेट में, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो जो हम अभी सीख रहे हैं ना, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको हम जेएसएन डेटा फॉर्मेट बोलते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स गो एंड सी इट नाउ। ओके, सो आपका क्या होता है, देखो बेसिकली जो जेएसएन डेटा है, हमने क्या बोला आपको, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में रहता है। तो जैसे आपको नाम से आपको समझता होगा, एरे है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट का एक एरे बनाते हैं। ओके हम अभी हमारा डेटा ये लेते हैं एग्जांपल, लेट हमारे पास यूजर्स है। ओके, सो हम क्या करें, एरे बना रहे ऑब्जेक्ट्स का। इसको छोटे छोटे वर्ड्स में ब्रेक डाउन करो तो आपको समझ में आएगा। हम क्या कर रहे हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का हम एक एरे बनाएंगे। ओके, सो हम पहले एक एरे बना रहे हैं, विच दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, राइट? ओके, तो एक अभी ऑब्जेक्ट है, राइट? सो हमें ऑब्जेक्ट का आपकी की एंड वैल्यू पेयर में रहेगा। सो हम अभी नेम एंड एज ही डालते हैं। ओके, सो नेम इज, हाँ, और नहीं तो हम क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट का एग्जांपल लिया तो स्टॉक मार्केट ही लेते हैं। तो स्टॉक्स, हमारे पास स्टॉक्स लिस्ट डाउन करते हैं, तो नेम ऑफ द स्टॉक इज फॉर एग्जांपल एमआरएफ। ओके, उसका प्राइस है विच इज फॉर एग्जांपल अभी समझो 80,000। ओके, सो दिस इज योर वन स्टॉक, राइट? अभी आपको क्या करना है, 5 स्टॉक का हम बनाते हैं, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट आपका होगा। ओके, सो दिस इज योर सेकेंड एलिमेंट ऑफ एन एरे, समझ रहे हो? सो आपका आएगा नेम, अभी आपका आएगा, अभी क्या आएगा, कौन से इसका आएगा, फॉर एग्जांपल अभी आ रहा है आपका JSW। यस, उसका प्राइस आएगा फॉर एग्जांपल 50,000, राइट? उसके बाद आपका है, देखो मैंने एरे इसमें डाल दिया, स्ट्रिंग में डाल दिया, ऑलराइट, नो वरीज, आप अपना नॉर्मल इसमें भी ले सकते हो। ओके, फिर इसके बाद हमारा आ रहा है थर्ड ऑब्जेक्ट। ओके, विच इज अगेन, हम क्या कौन सा ले सकते हैं यहाँ पर, अभी लेते हैं हम हमारा बिरला। ओके, बिरला, राइट? लेट अस सी द प्राइजेस, 1 लाख रुपीज। ऑलराइट, फिर इसके बाद हमारा एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लास्ट वन। उसको हम नाम देते हैं क्या, उसको हम नाम दे देंगे हमारा क्या देते हैं, MRF हो गया, विच वन फटाफट फटाफट, टाटा दे देते हैं। टाटा को कैसा बोल सकते हैं हम उसका प्राइस है फॉर एग्जांपल 10,000। ओके, सो हमारे पास एक एरे के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स है, 1, दिस इज अ सेकेंड ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज अ थर्ड ऑब्जेक्ट, राइट? एंड दिस इज अ फोर्थ ऑब्जेक्ट। ओके, हम क्या करते हैं, बेसिकली इसको कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं। हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग। ओके, स्पेलिंग हुआ है मिस्टेक ओवर योर, उसका हमारा एरे का नाम क्या है, स्टॉक्स, राइट? ओके, लेट्स गो एंड सी द आउटपुट नाउ। फाइन, सो हमारे पास क्या आया, देखो आपको एरे मिल रहा है। आपको एरे कैसे समझ रहे हैं, बॉक्स है एट द एंड, इसका समझा, उसका एरे, राइट? अभी ये इसके अंदर, ये एरे के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, 4, 1 2 3 एंड 4। लेट्स ओपन दिस, सी आपका 0 1 2 3 4 क्यों है, बिकॉज हमारे पास एरे के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, राइट? सो एक जीरो एलिमेंट पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, दिस वन। सेकेंड मतलब एट इंडेक्स 1 हमारे पास ए ऑब्जेक्ट है, सेकेंड इंडेक्स पे हमारा ये है, थर्ड इंडेक्स पे ये है, राइट? नाउ लेट अस सी हम हमारे डेटा को कैसा फैच कर सकते हैं तो आप अपने एरे के एलिमेंट्स को कैसा फैच कर सकते हैं, इंडेक्स से, राइट? सो हमें अगर MRF चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, स्टॉक बॉक्स में लिखेंगे 0, तो हमें अभी क्या आएगा, सिर्फ हमें आएगा ये आउटपुट। ओके, आपको फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट दिखाएगा, देखो फर्स्ट ही आया। अभी इसके अंदर के वैल्यू का आप कैसा फैच कर सकते हैं, जैसे आप अपना ऑब्जेक्ट के वैल्यू को फैच करते हैं, अगर आपको नेम उसका फैच करना है, सो आई विल से डॉट नेम। तो आपको क्या मिलेगा, इन स्टॉक 0, तो 0 इंडेक्स पे हमारे पास है दिस वन, और उसका हमें नेम चाहिए, तो MRF, तो इट शुड बी ओवर हियर, सी MRF, राइट? अगर उसका आपको प्राइस चाहिए तो आप क्या लिखोगे, डॉट प्राइस। ओके, और इस पे आप सेम तरीके से आप अपना एरे के क्या कर सकते हो, अपना
सॉरी, अपना एरे के जो भी आपके फंक्शन सी 80,000 आ गए, राइट। सिमिलरली आप अपना हर एक एलिमेंट के अगर आपको इटरेट करना है, ओके, सो मैं क्या कर दूंगा, स्टॉक्स डॉट मैप करता हूँ, ओके, और यहाँ पर मैं एक्स करके मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल कंसोल डॉट लॉग में हर एक स्टॉक का मुझे सिर्फ नाम देखना है, तो जैसे एक्स डॉट नेम, तो एक्स क्या करेगा, बेसिकली आपके हर एक एलिमेंट को पॉइंट करेगा, तो एक एलिमेंट को पॉइंट करेगा, उसका मुझे नेम चाहिए, राइट, बिकॉज दिस इज वन ऑब्जेक्ट, राइट, एक इंडेक्स वन हमारे पास ऑब्जेक्ट्स में, राइट। सो अभी हमारे पास हर एक इसका नाम आएगा, तो MRF JSW बिरला टाटा, MRF JSW बिरला टाटा, यस। सम हमारा ऐसे फंक्शन सी देखो, पहला आपको कितना हार्ड दिख रहा था, बट मैथ फंक्शन यूज कर सकते हैं आप, हाउ द एवरीथिंग इज बीइंग सिंप्लीफाइड, तब भी समझो अभी आपके पास लैक्स ऑफ स्टॉक्स है, ओके, सो वहां पर हमारा डेटा कितना बड़ा हो जाएगा, राइट, एंड उसके अंदर का अगर मेरे को सिर्फ नेम ही चाहिए, तो हाउ कैन वी एबल टू जस्ट डू इट इन जस्ट दिस 3 to 4 लाइन्स ऑफ कोड, यस, कैन यू एबल टू डू इट गाइस, यस, यस। आपको अभी देखना है सच में जेएसएन डेटा क्या होता है, सो देखो अभी मैं अगर इसमें आपको बताऊं जेएसएन डेटा एग्जाम्पल, आपको देखो वो एरे एंड ऑब्जेक्ट्स में होता है, सी इमेजेस में जाता है, सो सी ऐसा आपके एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, देखो यहाँ पर हमने क्या हुआ है, देखो इसके अंदर सी, ओके, we have got this in big form, so we have got this, सी, तो हमारा क्या है बेसिकली, देखो एक एरे है, देखो इसके अंदर हमारे पास देखो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर भी हमारे पास एरे है, बट दे आर द सेम, देखो इसमें लॉजिक तो सेम ही है, राइट, ओके, तो देखो एक ए एरे, इसके अंदर में हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो इन दिस वे आपके जो भी आपके डेटा आते हैं, इट्स इन द फॉर्म ऑफ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, डोंट गेट स्कैर्ड, ओके, सो इट्स लाइक दैट ओनली, यहाँ पर आते हैं, देखो हमारे पास एक की है, उसके अंदर हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, राइट, तो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे हो सकते हैं, नो वरी, तो आपको एक बेसिक सिंटेक्स समझ में आया, तो आपको पूरा इजीली समझ में आता है, यस, कैन यू एबल टू डू इट नाउ, यस, आपको समझा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, यस गाइस, बोथ ऑफ यू, यस, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट समझा, ऑलराइट, ग्रेट, ओके, हम हमारा अभी लास्ट देखते हैं, लॉजिक कैसा आपका लकी ड्रॉ विनर, बिकॉज ये मैं सिर्फ नॉर्मल आपको लॉजिक क्यों समझा रहा था, ये इसका लास्ट वन का, सो आपको एक क्या बोल सकते हैं, हम हमारा एक गेम बना रहे, ओके, जहां पर हमारे पास बहुत सारे क्या है पार्टिसिपेंट है फॉर दिस लकी ड्रॉ, राइट, और उसका लॉजिक कैसा होता है, मैं आपको सेम इस चीज में रहता है, समझ रहे हो, वहां पर कुछ अलग नहीं होता, सेम चीज में होता है, ओके, एंड एक रैंडम नंबर्स हम क्या करते हैं, हम हमारा लकी विनर है उसको ये करते हैं टाइटल से लकी ड्रॉ winner, all right, okay, now let us create one this array of object, so I can say let users, तो users मतलब आपके participants है इस ये गेम के लिए, ओके, यहाँ पर हम हमारा यूजर्स बना देते हैं, पर वे यूजर को हम देते हैं हमारा दिस, व्हाट वी कैन गिव इट ओवर हियर, क्या करते हैं हम हमारा, हाँ, हम हमारा डायरेक्ट यूजर को नेम ही दे देते हैं, राइट, बिकॉज हम हमारे नाम से हमारे यूजर को पहचान सकते हैं, ओके, सो लेट अस गिव द सिद्धेश ओवर हियर, ओके, व्हाट एल्स वी कैन हैव, अगर चाहिए तो हम हमारा नाम और कुछ ऐड करना है, डेटा को ऐड कर सकते हैं, बट फॉर नाउ लेट अस don't do it, okay, let us have the other one is that pranati over here, right, फिर हमारे पास j है अभी, right, which is j, right, और किसको हम ऐड करते हैं, let's add the अनुराग here, फिर हमारे पास है अंकिता, राइट, आई होप सो शी इज देयर, अंकिता, सो सॉरी, अंकिता, राइट, और एक लड़का ले लेते हैं, विच इज किसका नाम लेते हैं, लेट्स हैव फॉर नाउ राहुल, ओके, सो हमारे पास कितने पार्टिसिपेंट हो गए हमारे लकी ड्रॉ के लिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके, अभी हमें क्या करना है, रैंडम नंबर एक चाहिए, तो हम एक रैंडम करके एक वेरिएबल करते हैं, उसके अंदर हम लिखते हैं मैक्स डॉट, हमारा एक होता है रैंडम नंबर जनरेट करने के, बट ये आपको रैंडम नंबर 0 to 1 तक देगा, राइट, सो मैं उसको क्या कर देगा, एक सील फंक्शन में कर देता हूँ, या तो फ्लोर में कर दूँ, बिकॉज हमें जीरो भी चाहिए ना,
और इसका हमें अभी क्या आएगा 0 and 1 आएगा, राइट, इसका आंसर। बिकॉज मैक्स डॉट रैंडम आपको 0 to 1 तक आता है, 0 पॉइंट से समथिंग स्टार्ट होकर आपको 1 तक ही देता है। बट मेरे को अभी क्या चाहिए, उसको डेसिमल फॉर्म नहीं चाहिए, मेरे को डायरेक्टली उसको एक पूरा वोल नंबर में चाहिए था, राइट। तो अगर मेरे को अभी कितना तक नंबर चाहिए, 0 1 2 3 4 5, तो मुझे 5 तक चाहिए था, इससे इंटू फ्लोर ले रहा है तो वो 6 तक करते हैं, तो हमें 5 तक वैल्यू आएगा, समझ रहे हो। ओके, बिकॉज फ्लोर वैल्यू कहाँ तक लेगा, आपके इधर तक छोटे, मतलब आपके हमेशा नीचे वाला लोअर लिमिट वैल्यू लेगा, राइट। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ रैंडम नंबर, तो लेटर से हमें अलग अलग नंबर मिल रहे हैं क्या अभी। ओके ओके, तो 6 क्यों किया, बिकॉज हमें किधर तक चाहिए, 5 इंडेक्स से चाहिए, तो 0 1 2 3 4 5। ऑलराइट, तो हमें अभी whole number मिलेंगे from 0 to 5. Let's go and see the output here, which is over here. This is 2. We wrote 5 4 2 0 2 0 5 5 0। यस, हमें अलग अलग नंबर मिला। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से हम हमारा कंसोल लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। ओके, एंड आई विल से द विनर इज प्लस, किसको हम करेंगे, हमारा इसके अंदर के वैल्यूज को, तो यूजर्स के अंदर के हमारे रैंडम वैल्यूज डॉट दिस नेम, राइट। सो इन दिस वे आपका बेसिक आपका एक छोटा सा एप्लीकेशन बन जाता है, राइट। सो आपका भी विनर्स, लेट्स सी हु इज द विनर हियर। सो विनर इज राहुल, जय, राहुल अगेन, जय, अरे प्रणति, वी हैव गॉट इट, अनुराग, आई मिल अनलकी ओवर हियर, जय, अंकिता, राहुल, जय, Ankita again. Yeah, hope so. Hope so. We have got it. Yes. So have you got? Have you guys got this idea? Yes. Of course, समझा है. How can we able to make such type of thing? Yes. All right. Yes. Was it easy? Yes. Was the everything easy in our today's class? सबको अच्छे से समझा है? Yes, guys. I can understand only 2 people out here, right? But can't help because student join. Okay, so it's their responsibility to join. Okay, my responsibility is to teach you all, right? So I'm trying my best to teach you as well. Yes, need to practice. Yeah, all right, आपको practice करना होगा, fine, so you can able to get through it. Yes, so yeah, that's all for today, guys. Okay, let's me stop the recording.